Poets and Pancakes. Chapter from English, class 12. And a beautiful, a very interesting chapter. Something that deals with film world. फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है, अध्याय है. So all of you, I'm sure, like films, and this is a bit of a history, and if not history, it is a chapter which gives you a bit of insight into what goes on behind the curtain. पर्दे के पीछे क्या होता है सिनेमा बनाने के समय, क्या तैयारियां होती हैं, कितनी कठिनाइयां होती हैं, कितना समय परिश्रम देना पड़ता है, और जब पूरी फिल्म बन के आती है तो कितनी बड़ी टीम और कितनी बड़ी तादाद में लोगों का श्रम उसमें झोंका गया रहता है. Unimaginable. But this particular chapter deals about just one aspect of development behind the curtain. पर्दे के पीछे के केवल एक पक्ष को ले रहा है यह लेख. The title of the poem is Poets and Pancakes. Poets मतलब कवि, poem से poet. But what is pancake? आपने सुना होगा, कुछ लोग जानते होंगे. Pancake एक तरीके का केक है, और यदि हम देखें तो पैनकेक जो मालपुआ होता है, हमारे छत्तीसगढ़ का खास डिश है मालपुआ, उसे अंग्रेजी में पैनकेक कहते हैं. बहुत तरीके के पैनकेक बनते हैं, बहुत साइज़ के, बहुत आकार के, बहुत से अलग अलग कंटेंट्स के. तो पैनकेक इज समथिंग लाइक ए केक, मालपुआ. इट लुक्स लाइक पिज़्ज़ा ऑल्सो, it looks like burger also. So here is a story titled Poets and Pancakes. Now the question comes, what has film to do with poets and pancakes? Well, this is what is most interesting about this chapter, that how the poets are involved and how pancake is involved in this story. You would know very shortly. Before I proceed and tell you and disclose what exactly is pancake here in this story about films, let me tell you about the writer, the author. The author is Ashokamitran. Ashokamitran, 1931 born, a Tamilian. That means from Tamil Nadu. Telugu is from Andhra Pradesh. Malayalam is from Kerala. Kannada is from Karnataka, for your information. So he is a Tamil writer. He is a Tamil person, Tamil writer, belonging to Tamil Nadu. In this story, he himself is the writer, and he himself is a part of the story. अपने स्वयं की जीवनी पर उसने लिखा है. He recounts his years in one of the studios. मद्रास के एक प्रसिद्ध फिल्म स्टूडियो में अपने बिताए हुए दिनों को वो याद करता है, और उन दिनों को लेकर उसने एक पुस्तक लिखी है बहुत बढ़िया, जिसमें लिखा है, जिसका शीर्षक है माई ईयर्स विथ बॉस. बॉस के साथ गुजारे गए मेरे वर्ष. ये उसकी स्वयं की एक तरीके से आत्मकथा है उस काल की जो उसने उस स्टूडियो में गुजारे थे. इसमें, इस पुस्तक में ही टॉक्स अबाउट हाउ मूवीज हैव इन्फ्लुएंस्ड आवर लाइफ इन इंडिया. How movies have played very important role in giving shape to our culture also. How our culture has been affected by movies.
सिनेमा ने कैसे हमारी संस्कृति, हमारी जीवन शैली, हमारी सोच को प्रभावित किया है, ये बताते हुए ऑथर, जिसका नाम है अशोकमित्रन, वो पूरी कहानी लिखते हैं। My years with Boss tells you about impact of film on our life in India. And this story is, this narration, description of his life is about the time Ashokamitran spent in a studio called Gemini Studio. Now, Gemini Studio is one of the most famous old studios where films were made in India. भारत जो है विश्व में प्रति वर्ष फिल्म बनाने की दर में लगभग दूसरा है। सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं यहाँ पे भारत में, या दूसरा स्थान है उसका विश्व में। इतनी ज़्यादा फिल्में प्रति वर्ष बनती इन ऑल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ी। और जब ये फिल्म बननी शुरू हुई भारत में तो करीब वो 1880-1900 के आसपास फिल्मों का दौर शुरू हुआ, और 1920 में भारत में पहली वॉकी फिल्म बनी, वॉकी टॉकी, पहली फिल्म जिसमें आवाज़ थी। इसके पहले के जो 40 वर्ष थे जिसमें राजा हरिश्चंद्र, संभवतः फर्स्ट फिल्म थी इंडिया की, राजा हरिश्चंद्र, that was probably the first film in India. First 40 years, the films were basically made on mythology, on religious matters, from Ramayana, from Puran, from Mahabharata and other religious scriptures. अधिकतर कहानियाँ इन गाथाओं पे आधारित होती थी, अधिकतर फिल्में बहादुरी पर, धार्मिक बातों पर, जीवन के वैल्यूज़ पर, आदि आदि। बट वॉकी टॉकी ये सब साइलेंट एरा था। क्या था साइलेंट एरा? इसे कहते हैं जब पिक्चरें मूक होती थी, उसमें कलाकार की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती थी, केवल आप पिक्चर देखिए। और बाद में ऐसा भी हुआ कि आवाज़ अलग से आपको सुनाई जाने लगी, लेकिन कलाकार नहीं बोलता था। एज द साइंस एडवांस्ड, एज द टेक्नोलॉजी एडवांसेस, फिल्म बिकेम वॉकी टॉकी ऑल्सो, like the way we see today. Like today we see 3D films, and it is a big revolution in film industry. Similarly, audio being there in the film was first done in India with the film called Alam Ara, and then all started. Now this studio I am talking about, Gemini Studio in Madras. Similarly, you have Ramoji Studio, which is a very modern studio in Hyderabad. You have a Prithvi Theatre in Bombay. Thereafter, Raj Kamal in Bombay, Film City in Bombay, Filmistan in Bombay. Bombay has maximum number of studios. That is why we call it Bollywood. And these studios create situation for film. पिक्चरों के लिए वो situation create करते हैं। बहुत सी शूटिंग वास्तव में उस लोकेशन में ना जाना पड़े जहाँ का दृश्य दिखाना है, तो वो स्टूडियो में वो दृश्य तैयार करते हैं हूबहू वैसा ही। तो Gemini was one of the first studio, and mind you, this Gemini studio was owned by one gentleman called Mr. S.S. Vasan. Though of course from the name you can make out that it must have some relation with Gemini Ganeshan. Very famous personality, Gemini Ganeshan. He became all the more famous as father of a very famous Bollywood heroine, Rekha. So Gemini Studio में ये लेखक काम करते थे. He was working in Gemini Studio, which was located in Madras, now called Chennai. And this studio was set up in 1940. That means after the silent era almost comes to an end, then a normal film started coming. He joined, this writer joins Gemini Studio. It was out of one of those most influential film producing organizations that produced many films.
ये जेमिनी स्टूडियो जो था वो बहुत प्रसिद्ध स्टूडियो था और बहुत सारी इसने फिल्म बनाई और अच्छे अच्छे विषयों पर फिल्म बनाई और बहुत लोगों को प्रभावित किया। particularly during the initial days, 1940-45 का काल ऐसा है जब स्वतंत्रता आंदोलन भी था, जब फिल्म वर्ल्ड में नई नई बातें शुरू हुई थी। So Indian film industry was going through changes and technology was also coming. Gemini Theatre was also established around that time. That was the time, early days of film making in India. तो ये जो कहानी है ये आपको भारत के फिल्म मेकिंग के अर्ली डेज की ओर ले जाएगी। आपको अपने को ले जाना होगा उस समय में जब भारत में फिल्में बनना शुरू हुई थी, खासकर वॉकी टॉकी फिल्में। एंड एज आई सेड इट्स फाउंडर वाज एस.एस. वासन। ये तो फाउंडर थे, एस.एस. वासन इसके ओनर थे, फाउंडर थे, या जेमिनी गणेशन भी इसके एक हिस्सा थे। लेकिन आपको ये जानना है कि अशोकमित्रन वहाँ क्या थे। ही वॉज ए सिंपल राइटर, और राइटर से ज़्यादा उनका काम था टू कलेक्ट न्यूज़पेपर कटिंग्स। In Gemini Studio, he used to cut newspaper clippings on a wide variety of subjects and store them in files. अलग अलग विषयों पर वो कलेक्ट करते थे न्यूज़पेपर की इंफॉर्मेशन और उसको विषय के अनुसार अलग अलग फाइलों में इकट्ठा करते थे। याद रहे, the writer is not a personality like hero or heroine or character actor or actress. He is just a man cutting newspapers, cutting out news of different kinds and pasting them in files and compiling them. उनको इकट्ठा करते थे। कई बार ऐसा होता था कि न्यूज़पेपर स्पष्ट नहीं होता था तो इनको लिखना पड़ता था। अशोकमित्रन को न्यूज़पेपर की उस न्यूज़ को कई बार यदि उनको अच्छी लगती थी तो उसको हाथ से लिखते भी थे। He used to write it by hand and then paste it in the file. Although he performed an insignificant function in the Gemini Studio, he was the most well-informed of all members. Why? Why least influential? सबसे कम प्रभावशाली व्यक्ति क्यों थे वो, या सबसे कम प्रभावशाली व्यक्तियों में से क्यों थे? क्योंकि वो स्टूडियो था जहाँ सिनेमा से संबंधित ज़्यादा काम होता था और ये एक समाचार पत्रों की कटिंग को इकट्ठा करने का काम करते थे। तो सिनेमा से कोई लेना देना नहीं, तो इनका उस फिल्म वर्ल्ड में, फिल्म इंडस्ट्री में कोई प्रभाव नहीं था। लेकिन मोस्ट वाइडली रेड पर्सन, मोस्ट वाइडली इन्फॉर्म्ड पर्सन, वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, लेकिन स्टूडियो में सबसे ज़्यादा ज्ञान था तो इन्हीं को था। जेमिनी फैमिली की यदि हम बात करें, उस स्टूडियो के लोगों की जिनकी तादाद 100, 200, 300 रही होगी, उनमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे ये थे, ज्ञानी ये थे। क्यों? न्यूज़पेपर की कटिंग काट के जब लगाते थे यहाँ वहाँ, तो पहले पढ़ना पड़ेगा उसको, उसके बाद उसको सॉर्टिंग करना होगा, फिर उसको फाइलिंग करना होगा। इस प्रक्रिया में बहुत ज्ञान बढ़ गया था। तो एक तरफ जहाँ बहुत छोटा, उस संस्था में बहुत छोटे कद के व्यक्ति थे, बहुत ज्ञानी थे। सवाल ये आता है कि पेपर कटिंग क्यों रखते थे? वाई ए स्टूडियो नीड्स ए पेपर कटिंग? बिकॉज पेपर कटिंग्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग अप द हिस्ट्री। उस समय के इतिहास की बहुत ज़रूरत पड़ती है फिल्म के समझने में। कोई सी यदि मुझे फिल्म बनाना है आज से 100 साल पुरानी, तो कैसा दृश्य था, कैसे लोग थे, क्या सूचनाएं थी, क्या हरकत होती थी, क्या गतिविधियां थी, ये कहाँ से मालूम पड़ेगा? उस समय की पेपर कटिंग से। तो दीज पेपर कटिंग्स आर ब्यूटिफुल कंपाइलेशंस ऑफ द हिस्ट्री एंड आर्ट ऑफ दोज टाइम्स। हिस्ट्री एंड आर्ट ऑफ दोज टाइम्स, उस समय की राजनीति, उस समय की पहनावा, उस समय का ड्रेस कोड, बहुत सारी बातें उस समय पता लगती। तो जिस समय की पिक्चर बनाना है उस समय क्या स्थितियां थी, इसको देखने के लिए न्यूज़पेपर बहुत काम आते हैं। तो इसलिए ये डिपार्टमेंट भी जेमिनी स्टूडियो में था जहां पर इंफॉर्मेशन, पेपर की कटिंग्स फाइल होती थी। सो अब आप समझ गए हो
Although Ashokamitran, a very insignificant man of very small status, but very ज्ञानी, ये याद रखेंगे. Then we are talking about 1940s, and we are also talking about an extract from a book written by Mr. Ashokamitran. The name of the book is My Years with Boss, जिसमें उन्होंने अपने बारे में, अपने काल के घटनाक्रम को लिखा है उस किताब में. एक तरीके से उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसका एक हिस्सा हमने लिया. इतना समझने के बाद नाउ वी मूव टू द स्टोरी, एंड दैट इज कॉल्ड पोएट्स एंड द पैनकेक्स. पैनकेक्स रिमेन्स अ सस्पेंस कि यहाँ मालपुआ की बात क्यों हो रही है. पोएट्स की बात तो फिर भी आप समझ सकते हैं कि शायद कभी लोग काम आते होंगे गाने लिखने के लिए, यू मे बी राइट, बट व्हाट अबाउट मालपुआ लाइक थिंग, व्हाट अबाउट दोज आइटम. द वेरी फर्स्ट लाइन मेक्स इट वेरी क्लियर. द वेरी फर्स्ट लाइन रिवील्स द सीक्रेट. पहली लाइन से ही पता लग जाएगा कि मैं यहाँ पैन केक का अर्थ मालपुआ से नहीं बात कर रहा हूँ. इस कॉन्टेक्स्ट में पैन केक एक कंपनी का नाम है, एक ब्रांड कंपनी का नाम है. Oh, let us move to the para 1 of this. Pancake was the brand name of the makeup material. किस तरह की कंपनी का? जो मेकअप बनाती थी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश और आईब्रोज और जो भी करना होता है, पाउडर, जो कलाकारों को मेकअप करने के लिए लगता है, डाई, कलर चेंजिंग के लिए जो भी सामान लगता है. फिल्म वर्ल्ड में आप देखेंगे तो मेकअप के सामान की सूची बड़ी 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 लंबी है. युवा को बुढ़ा बनाना, बुढ़े व्यक्ति को बीमार दिखाना, बच्चे को बीमार दिखाना, बच्चे को बूढ़ा बनाना, ये सब जो होता है ये इसमें मेकअप लगता है. एंड यू रियली नीड टू बी ए ग्रेट आर्टिस्ट टू डू ए गुड मेकअप. लेकिन ये तभी संभव है जब आपके पास मेकअप का बहुत सामान हो. तो ये जो पैन केक है जिसकी चर्चा राइटर यहाँ कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली ए ब्रांड नेम ऑफ ए कंपनी कॉल्ड पैन केक. पैन केक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल कंपनी. द जेमिनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड्स. और ये जो कंपनी का जो माल था वो ट्रक से मंगाया जाता था. मेकअप का जैसे मैंने बताया बहुत सामान लगता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लगता है, तो ये ट्रक में सामान आता था इस ब्रांड का जेमिनी स्टूडियो में. जेमिनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड. बॉट बाई से बना, ट्रक लोड मतलब ट्रक में भर के आता था. ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट. मिस गौहर must have used it. Vaijayanti Mala also must have used it. But Rati Agnihotri may not have even heard of it. 4 लोगों के नाम हैं इसमें, 4 character. Greta Garbo. Greta Garbo is basically a Swedish American actress. नाम बहुत प्रसिद्ध है और दुनिया के 5 यदि बेस्ट एक्ट्रेसेस की बात करें तो निश्चित रूप से किसी भी काल के 5 बेस्ट एक्ट्रेसेस में शी विल बी वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस दैट द वर्ल्ड हैड. वर्ल्ड एंड स्वीडिश अमेरिकन. एंड शी बेसिकली वर्क ड्यूरिंग साइलेंट एरा, जब पिक्चरों में आवाज़ कम होती थी. उस समय की मेन कैरेक्टर है, मेन हीरोइन है, हीरोइन थी फिल्मों में, एक्ट्रेस थी. और जो उसकी फिल्म थी, वो जो उसकी एक्टिंग थी, वो ज़्यादातर उदासी की थी, ज़्यादातर जीवन के तकलीफ़ों से भरी हुई थी, सीरियसनेस थी उसकी फिल्मों में और आदि आदि. बट रेटेड टू बी अमंग द टॉप 5 बेस्ट एक्ट्रेसेस दैट द वर्ल्ड हैड. उसने यूज़ किया होगा ऐसा लेखक का कहना है. अशोकामित्रन कहते हैं कि मिस ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट. मतलब मैं इतनी बड़ी कंपनी का लाता था, हमारी कंपनी जेमिनी में जो मेकअप आता था वो इतनी शानदार ब्रांड कंपनी का आता था कि ग्रेटा गार्बो ने उसको यूज़ किया होगा.
इतनी बढ़िया कंपनी का आता था कि मिस गौहर ने यूज़ किया होगा। अब ये गौहर कौन है? द फेमस सिंगर कॉल्ड गौहर जान। गौहर जान उस काल की बहुत प्रसिद्ध सिंगर थी, 1930, 29, 25, 30 की, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स। अब ये सिंगर थी, लेकिन गाते गाते उस समय में जो गाते थे वही एक्टिंग भी करते थे, या एक्टिंग करने वालों को गाना भी होता था। आज के जैसा नहीं जहाँ प्ले बैक सिंगर अलग होता है, गाने वाले अलग होते हैं, एक्टिंग करने वाले अलग होते हैं, लिखने वाले अलग होते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो एक्टिंग करता था वही गाता था। आप यू सी द ओल्ड फिल्म्स, द सिंगर, द एक्टर हिमसेल्फ, द एक्ट्रेस हरसेल्फ आर सिंगर्स। जो सब गाते हैं उनकी अपनी आवाज़ में, इसलिए उस ज़माने के एक्टर एक्ट्रेसेस को थोड़ा गाना भी आना चाहिए था। आज तो प्ले बैक सिंगर हो गया। सो गौहर वॉज ए सिंगर बेसिकली। वैजयंती माला, you all know, a very famous actress. A very famous actress of 40, 50 years back, Vaijayanti Mala. Sangam, Amrapali, Nagin, Madhumati, some of the most famous films and award-winning films. Greta Garbo also won Academy Awards, remember. वर्ल्ड एकेडमी अवार्ड मिलना बहुत ही बड़ी बात है, एंड ग्रेटा गार्बो वन इट 3 times. वैजयंती माला was also extremely talented actress of her times. Miss Gauhar, as I said, is singer actress. What about Rati Agnihotri? Rati Agnihotri is a modern time heroine. 20 साल पहले की वो एक्ट्रेस रही हैं। आपने उनकी फिल्म देखी होगी, रति अग्निहोत्री की फेमस फिल्म एक दूजे के लिए। You remember that film? I'm sure. एक दूजे के लिए. But coming back to this lesson, the author says truckloads of pancake brand makeup material used to come to our Gemini. छोटी मोटी मात्रा में नहीं, truckloads. और वो भी कौन सी कंपनी? पैनकेक। पैनकेक कितनी बड़ी कंपनी, जिसको ग्रेटा गार्बो यूज़ करती थी, वैजयंती माला यूज़ करती थी, गौहर जान यूज़ करती थी। हाँ, शायद रति अग्निहोत्री नहीं करती थी, क्योंकि रति अग्निहोत्री के समय में और भी नई कंपनी आ गई, और शायद रति अग्निहोत्री उसका नाम भी नहीं सुना होगा। रति अग्निहोत्री may not have even heard of this name. The makeup department was located there in the Gemini studio. And it was located on the upstairs. देखिए upstairs की स्पेलिंग यानी ऊपर, स्टेयर माने सीढ़ी। कैसी सीढ़ी? जो हिलती ना हो, सीमेंट की बनी हो, पक्की सीढ़ियों को स्टेयर कहते हैं, और ऐसी सीढ़ियाँ जिसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाएं उसे लैडर कहते हैं। लैडर, आई एम टॉकिंग अबाउट अपस्टेयर्स, मतलब ऊपर जाने पर, अप। तो जो कंपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट था, मेकअप डिपार्टमेंट, वो ऊपर था जेमिनी स्टूडियो में, फर्स्ट फ्लोर पे कहीं पर, अपस्टेयर्स। एंड इट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल। और ऐसा माना जाता है कि वो जो बिल्डिंग थी वो रॉबर्ट क्लाइव का घुड़साल था। स्टेबल यानी घुड़साल, घुड़साल मतलब जहाँ घोड़े रहते हैं। किसी ज़माने में रॉबर्ट क्लाइव के समय का ये भवन है, जिसको घुड़साल के रूप में उपयोग किया जाता था। और चूंकि अंग्रेजी कला से बना हुआ ये भवन था, इट वॉज ब्यूटिफुल। अब रॉबर्ट क्लाइव कौन था? इन हिस्ट्री यू मस्ट हैव रेड रॉबर्ट क्लाइव एज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना करने वाला व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव, जिसने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई में बंगाल के राजा को 2 मिनट में हरा दिया, चालाकी से हराया और बंगाल पर कब्जा किया। यहीं से अंग्रेज़ों के शासन की शुरुआत होती है भारत में, 1757, 1757। And he was the man, Robert Clive, who was responsible for the starting British rule in India. British had already come 150 years back. They had come in 1600, but they had come as
vyapari, as merchants. Now he converted these merchants into rulers, and credit for converting this company into a ruling company of India goes to Robert Clive. And you know, Robert Clive joined this company basically as a clerk. रॉबर्ट क्लाइव जो है वो क्लर्क के रूप में ज्वाइन किया और छोटी मोटी तनख्वाह में काम करता था। वहाँ से 15 साल में अपने कौशल के बल पर उसने बहुत ऊंचा स्थान बनाया। एंड देन फाइनली ही बिकेम द गवर्नर। रॉबर्ट क्लाइव बिकेम द रूलर ऑफ बंगाल, फाउंडर रूलर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। सच ए बिग थिंग। So this should be an inspiration to you कि हम कितने भी छोटे ओहदे में हों, यदि हम अच्छी मेहनत कर रहे हों तो हम ऊंचा पहुंच सकते हैं। So Robert Clive has the credit of being the founder. It was his building where Gemini Studio was located, and in this building, what was there? The stable, घुड़साल था। Robert Clive had many other such buildings in Chennai. A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. करीब 1 दर्जन उसके मकान थे चेन्नई में जो निवास स्थान के रूप में जिसका उपयोग करता था। For his brief life and an even briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving. अपने संक्षिप्त काल में, ब्रीफ माने संक्षिप्त, और उससे भी संक्षिप्त स्टे, चेन्नई में स्टे में रॉबर्ट क्लाइव ने काफ़ी घूमा होगा ऐसा माना जाता है। सीम्स टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग। सीम्स माने महसूस होना, ऐसा लगता है कि अपने छोटे से काल में, और उसमें भी उससे भी छोटे काल में जब वो चेन्नई में था, उसने काफ़ी घूमा है यहाँ। और besides fighting some impossible battles in remote corners of India, इस घूमने के अलावा, besides मतलब के अलावा, besides, और beside मतलब by the side of, के बाजू में। You sit beside me, तुम मेरे बाजू में बैठो। Besides you, श्याम will also go, श्याम के अलावा, तुम्हारे अलावा श्याम भी जाएगा। So I think you understood the difference between beside and beside. So the author says कि beside moving about, staying in different houses that he had, he also did quite wonderful things, fought some of the most impossible battles. कुछ बहुत ही असंभव लड़ाइयाँ लड़ी उसने भारत के रिमोट कॉर्नर्स में, दूरस्थ स्थलों में। रिमोट मतलब दूरस्थ, बहुत दूर। रिमोट कंट्रोल बोलते हैं ना, मोबाइल, टीवी का रिमोट, एयर कंडीशनर का रिमोट, कार का रिमोट, उसी से बना। रिमोट मतलब दूरस्थ, जो दूर है। तो रिमोट इज नॉट द नेम ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, रिमोट इज द function that instrument performs. So here he went to the remote corners of the country and fought some of the best impossible battles. और उसके अलावा उसने और क्या किया? उसके अलावा क्लाइव ने यहाँ पर एक भारतीय लड़की से शादी भी की। He married a maiden, maiden मतलब सुंदर लड़की, उससे शादी भी की। कहाँ? सेंट मैरीज चर्च में, इन द फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। मद्रास का आज भी यह किला जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज है बहुत प्रसिद्ध है। और बल्कि इस फोर्ट सेंट जॉर्ज में आज तमिलनाडु का मंत्रालय चलता है। इट इज़ सच ए मैसिव पैलेशियल ग्रैंड बिल्डिंग कि आज भी वहाँ पर पूरी की पूरी सरकार सेंट फोर्ट जॉर्ज मंत्रालय से चलती है। इतना भव्य है वो, इतना विशाल है। तो वहाँ उसने शादी भी की। तो इस प्रकार क्लाइव के, तो नाउ वी हैव लर्नड अबाउट जेमिनी, वी हैव लर्नड अबाउट पैनकेक, वी हैव आल्सो लर्नड अबाउट क्लाइव। आफ्टर नोइंग द लोकेशन of the studio, after knowing that the studio had makeup room on the upstairs, after knowing that the building was in fact a stable of Robert Clive, must have been grand building,
After knowing that it was basically, the writer is basically talking about makeup room, where makeup material was of the best quality in the world, let us come to learn something more about makeup room. अब हम थोड़ा मेकअप रूम की ओर चलें. The makeup room had the look of a hair cutting salon. जो मेकअप रूम था हेयर कटिंग सैलून जैसा, बार्बर की दुकान जैसा था. लेकिन हाँ, अच्छे बार्बर की दुकान जो आजकल होती है ना, हेयर कटिंग सैलून बड़ी बड़ी, with lights at all angles, around half a dozen large mirrors. बहुत चमचमाती लाइट थी और सभी एंगल में थी वो लाइट, और करीब आधा दर्जन से ज़्यादा लंबे लंबे मिरर थे. आप देखते हैं ना, सैलून जाएं, सामान्य बार्बर की दुकान में, सामान्य नाइयों की दुकान में ये सुविधा नहीं रहती, लेकिन यदि सैलून जाएं तो वहाँ पर आप देखेंगे मिरर्स रहते हैं, बड़ी तेज़ तर्रार लाइट रहती है, एयर कंडीशनर रहता है और मिरर का अलग अलग तरीके से लगाया जाता है ताकि आप अच्छी तरह से अपने को जो काम करवाने के लिए गए हैं वो देख सकें. सो नाउ ही इज डिस्क्राइबिंग द रूम एंड ही सेज इट हैड ब्यूटीफुल लाइट्स, इट हैड ब्यूटीफुल मिरर्स, दे वर ऑल इनकैंडेसेंट, दे वर ऑल इनकैंडेसेंट. इनकैंडेसेंट मतलब चमकीला, चमकते हुए, तेज, बहुत तेज, गरम कर देते थे. जो जब बहुत तेज लाइट रहती है, जब आप सोडियम लाइट, हैलोजन लाइट इसके पास जाएं तो बहुत गर्म लगता है. और उस समय की टेक्नोलॉजी में लाइट जितनी गर्म होगी वही उतनी ब्राइट होगी. मॉडर्न टेक्नोलॉजी डजंट हैव हीट इन द बल्ब्स. इफ़ यू यूज LED and any other modern bulb, they are not hot. You can hold it. But previous bulb used to be very hot. And these bulbs which were there in the studio, in the salon or in the studio makeup room, they were very, very bright. Incandescent, चमकते हुए, बहुत तेज गरम. So you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup. इतने गरम थे वो बल्ब, तेज लाइट्स गर्म हो जाती थी. तो ऑथर कहता है, यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, द फियरी मिजरी ऑफ दोज इन द मेकअप रूम. फियरी मतलब तेज तरह, बहुत तेज. मिजरी मतलब दुर्दशा. क्या दुर्दशा होती होगी उन लोगों की जो मेकअप रूम में मेकअप कराते हैं, आप कल्पना कर सकते हो. दुर्दशा क्यों? वाई मिजरी? Because of those bright, hot lights. These bright, hot lights caused inconvenience to those who were doing makeup and for those who were being made to do makeup. दोनों के लिए ये बड़ी अच्छा हाल नहीं था वहाँ पे. The makeup department was first headed by a Bengali. पहले ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था, इसका जो मुखिया था वो एक बंगाली था, मिस्टर अशोकमित्रन सेज, जो न्यूज़पेपर की कटिंग का काम करते थे और जिन्होंने ये लेख लिखा है. ही सेज कि द फर्स्ट हेड वाज ए बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर ए स्टूडियो एंड लेफ्ट. हु बिकेम टू बिग. टू बिग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया. हाइट में बड़ा नहीं, अपने ओहदे में, अपने तेवर में बहुत बड़ा हो गया. और चूंकि वो अपने को बहुत बड़ा मानने लगा, उसने स्टूडियो छोड़ दिया और बड़े पद पे चला गया. मेकअप रूम से निकल के किसी और बड़े काम में लग गया. सो ही बिकेम टू बिग. द एप्पल इज़ टू बिग फॉर मी टू ईट. ये एप्पल जो है मेरे लिए बहुत बड़ा है. बिग ही नहीं, टू बिग, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है. ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है, टू बिग. यू आर टू स्मॉल टू टॉक ऑल दीज थिंग्स यार. तुम बहुत छोटे हो ये सब फालतू बात, ये सब बात करने के लिए. अर्थात छोटे मुंह बड़ी बात, शोभा नहीं देता. सो हियर ही सेज ही वाज टू बिग. दैट बंगाली जेंटलमैन
with the passage of time, समय के साथ साथ he became a big man and so he left to join somewhere. He was succeeded by a Maharashtrian. अब मराठी से कोई आते हैं महाराष्ट्र से, who was held by a Dharwar Kannadiga, an Andhra, a Madras Indian Christian, an Anglo-Burmese, and as usual local Tamils, who was assisted by. मतलब महाराष्ट्रियन आए बंगाली के बाद और उनकी मदद करने के लिए कौन कौन थे? मदद करने के लिए भी अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोग थे। धारवाड़ से, धारवाड़ कहाँ है? कर्नाटका में है। कन्नाडिगा अर्थात कर्नाटक का एरिया, वहाँ एक जगह है धारवाड़, बहुत प्रसिद्ध। एक आंध्राइट भी था, एक क्रिश्चियन भी था जो मद्रास का था, इंडियन था, और इसके अलावा एक एंग्लो बर्मीज भी था। और इतने लोगों के अतिरिक्त चूँकि चेन्नई में था, बिकॉज इट वॉज लोकेटेड इन चेन्नई, देयर विल बी लॉट ऑफ तमिलियंस ऑल्सो. So you can understand that people from different parts of the country were a part of that Gemini studio. So what does the author say? All this shows that there was a great deal of national integration, great deal of, एक साथ बोलेंगे, ऑफ अलग नहीं होता, डील का डील मतलब क्या होता है? आप सामान्य समझते हैं डील होना, एक समझौता होना, सहमति होना, लेन देन की डील हुई है। लेकिन एक जो अलग उपरूप में होता है वो है एक गुड डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता का एक बहुत बड़ा ये प्रतीक बन गया। एक उदाहरण था कि जहाँ बर्मीज़ भी था, एंग्लो बर्मीज़, एंग्लो इंडियन भी था, क्रिश्चियन भी था, महाराष्ट्रियन भी था, तमिलियंस तो थे ही, आंध्राइड भी था, कन्नाडिगा भी था। तो ये ऑथर सेज, मिस्टर अशोक मित्रन, कि इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता का मानो परिचायक था। Even before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. AIR क्या है? All India Radio. और Doordarshan, the first TV channel that we had in India. आप लोगों के बर्थ से पहले, बिफोर 1990, दूरदर्शन एक ही चैनल होता था और उस एक चैनल में सरकारी ढंग के कार्यक्रम आते थे, बिकॉज इट वॉज गवर्नमेंट ओन्ड। बड़े सीरियस सीरियल्स आते थे, कहानियाँ, माइथोलॉजी, एंड इट वॉज गवर्नमेंट कंट्रोल्ड। तो दूरदर्शन चैनल का उपयोग सरकार राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करने के लिए बहुत करती थी। उसमें बहुत सारे विज्ञापन, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते थे जो नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए किए जाते थे। मैनी प्रोग्राम्स ऑन दूरदर्शन एंड रेडियो यूज्ड टू बी shown with the purpose of promoting national integration. Even All India Radio would sing a lot of songs which were patriotic, which would promote unity in India, which would help in bringing Indians of different states close to each other and what not. So अशोक मित्रन कहते हैं व्यंग करते हुए कि इससे पहले कि AIR और दूरदर्शन में इंटीग्रेशन की बात होनी शुरू हुई, हमारे जेमिनी सर्कस में, तो हमारे जेमिनी स्टूडियो में पहले से नेशनल इंटीग्रेशन हो रहा था। सब अलग अलग जगह के लोग थे। और AIR मीन्स ऑल इंडिया रेडियो। टू ब्रॉडकास्ट मतलब प्रचार करना, और टू ब्रॉडकास्ट मतलब प्रचार करना। रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी मतलब प्रचार करने वाली कंपनी, चाहे रेडियो के माध्यम से चाहे टीवी के माध्यम से। ब्रॉडकास्ट याद रखेंगे।